चल रही है, मतलब आपकी जो लाइफ है उसकी जर्नी बड़ी सुहानी होगी अगर आप ओबीडियंट बनोगे। इसका ये मतलब होता है कॉन्वर्सली द लेवल ऑफ ओबीडियंस इज पुअर इन यू, अदरवाइज यू वुड हैव नेवर सीन अ गोड। दिस आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी। तो आप ओबीडियंट बनिए, पहले स्टूडेंट बनिए, सीखना है। आप बहुत जवान हैं, यंग है, यात्रा बड़ी लंबी है, सुखदायी है, क्योंकि आपको बोर्ड दिखा जो अच्छे पानी में बहुत बढ़िया जा रहा है, मतलब आपकी यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी, सब मिलेगा। सीखिए चुप रहना, सीखिए ओबे करना सीनियर्स को, ठीक है। टेल मी मैडम, व्हाट यू फील? Same effect, whatever is written there, if I saw more white color, just as it was moving, and I was having a motion like, you know, I've been thrown from a giant tree, when the giant tree comes down, and my whole body, the upper portion was going down. So I'm sitting. I was feeling very warm, absolutely hot. And my legs and hands are going, you know, everything's going down, down. See, she's bound to feel the energy now also. Why? Because she saw white color. That is the ultimate color. श्वेत जो है उसके अंदर सारे रंग होते हैं। श्वेत रश्मि जब पानी के बूंद से टकराती है तभी तो इंद्रधनुष पैदा होता है। तो इन्होंने सीधा शक्ति पा लिया, डायरेक्ट अनएडल्टरेटेड व्हाइट। तो इनकी ऊर्जा की क्षमता बहुत अच्छी थी, तो ऊर्जा इतनी खींची है तो प्रसाद पाया है। तो आराम से बैठिए, आधे घंटे के बाद बहुत अच्छा लगेगा। वेल डन। मैडम आप बताइए। Actually, throughout I was like Shri Sai Baba's this thing. Because I've been, you know, there is a certain channel on which they give once a week, and here also I saw it for quite some time. I've been wanting to go. I used to go quite regularly. Now I haven't been for some time, and I was mostly dwelling there only. I was thinking of Sai Baba, and I really, it is lovely to have his darshan. I didn't feel anything. तो विदाउट टिकट यू रीच्ड शिरडी। और क्या चाहिए? But I do off and on. Yeah. हाउ डू यू फील नाउ? Nice. You feel relaxed? Did you feel any of the sensations, vibrations, any energy movement? No. But in your case, since there was a visual operating, it went directly into that. But let me tell you one thing. It's very fascinating to see things. Okay, it pleases your senses. But best dhyan is to remain without any visions, to remain without any sound. If dhyan takes place inside you and holds you like this without anything happening and then leaves you like this after some time, then you are becoming a champion. Otherwise, all visions are expenses of the dhyan energy. All visions are an expenditure of dhyan energy. All sounds are an expenditure of the dhyan energy. But what happens is, in the beginning, your attitude towards ध्यान is sensory. इंद्रियों द्वारा ही आप ध्यान को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सब नाटक होता है। पर आखिर चल के ध्यान शक्ति आपको पकड़ के रखेगी और फिर छोड़ देगी। जब कोई इंपॉर्टेंट बात बताना होगा तब विजुअल आके चला जाएगा, वो मंजूर है। पर अदरवाइज कि नॉर्मल प्ले ऑफ लाइट एंड साउंड शुड एंड आफ्टर सम टाइम। शुरू में चलने दीजिए, तो उसके बाद ये चला जाएगा, तो तब नहीं सोचना अरे मुझे कुछ दिखता नहीं, मेरा ध्यान खराब हो गया। आपका ध्यान अच्छा हो गया इसलिए बंद हो गया। क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में दिखाते हैं ना, जी फॉर जिराफ, तो जिराफ दिखाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, पिक्चर नहीं दिखाएंगे, खाली लिखेंगे जी फॉर जिराफ, बच्चे यस टीचर, ऐसा ही चक्कर रहेंगे। क्योंकि प्रभु आपको अपने क्लासरूम में आपको टीच कर रहा है, तो ये उसकी महिमा है। आप बताइए राव साहब। I was trying to connect to the what you said, to the source of power, and close my eyes and in dark, only in darkness, I visualized the two entities, myself and him, the source of power, and it went on like that for about 20-25 minutes. And I looked
opened my eyes, I was quite relaxed. Nothing happened. You felt any energy movement anywhere? Nothing. You were locked in dhyan. Wonderful. Now I ask everybody. आप बताइए. Well, my experience was amazing. I had the crawling sensation on my head. It was coming and going, and there was a spectrum of color. First it started with blue color, then violet, then green, and then yellow. I felt as if my mouth cavity is filled with something which I is unable to express. ये बहुत अच्छी बात कही, नोट करिए इसको. And my fingertips, even still I am feeling very heavy. It is not gone. My legs were heavy. And the most wonderful thing what I experienced, I didn't come out of this dhyana, but I forcefully came out. कि जो मुंह के अंदर जो रस टपका ना, यही खूबी वाली बात है कि अपने अंदर भी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है और ये डॉक्टर है ना, जिनको सबूत देना पड़ेगा ना ऊपर वाले को कि भाई तू जो मिक्स करता है तो हम भी कर सकते हैं, करके उनको पुरावा दे दिया. तो ऊपर वाला जो होता है हर एक को अलग अलग तरीके से पकड़ता है और वो जो पकड़ता है तो उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है. वो अंदर से कर देता है कुछ ऐसा काम कि फिर उसके ऊपर डाउट करने के लिए कोई मौका ही नहीं रखता. इसलिए ध्यान सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा जादू है. इसलिए जादू है कि इस जादू से कोई आपके अंदर कोई भी डाउट पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये जादू आपके अंदर हो रहा है, आपके बाहर नहीं हो रहा है. अभी मैं कुछ आपको मटेरियलाइज करके दूंगी तो आप बोलेंगे कुमार साहब ने यहाँ से निकाला, और ये जो अंदर मुंह के अंदर जो टपका उसके लिए क्या बोलोगे? उसके लिए तो कुछ बोल नहीं पाओगे, मानना ही पड़ेगा कि ऐसा होता है. तो ये मीठा स्वाद कभी आना, कभी खट्टा स्वाद आना, कभी कड़वा स्वाद आना, ये सब खूबियां हैं. प्रभु ही जाने इसका राज. इसको अमृत ही मान लो तो अमृत हो जाएगा. तो ये सब प्रसाद है जो विविध किस्म की अनुभूतियां होती है, इसमें सब एक रहस्य छिपा रहता है. और एक बात जान लीजिएगा कि ध्यान में जो भी आप देखते हो ये आपके लिए ही एक पर्सनल सूचना है, वो दूसरे से कोई मतलब रखता नहीं है. ये समझने की कोशिश हमेशा करना कि जो भी दिखता है वो आपके लिए है. इट इज अ मैसेज फॉर यू. ट्राई टू अनकोड, ट्राई टू डिसाइफर दैट मैसेज. कोशिश करो. प्रभु ने जब वैसा दिखाया है तो उसको मालूम है कि आपको एक न एक दिन समझ में आ जाएगा. दी constant effort to understand the abstract is the method to learn dhyan further and further. तो जब कुछ दिखाता है, जब कुछ फील होता है तो उसको बार बार समझने की, try to unravel that mystery in your individualistic way, and if you do that the knowledge of dhyan shall be born, and this is the way you will write your book of meditation. Manutosh, tell me what happened. I felt heaviness in head, and head was going down. Continuously, I was trying to lift it up, not happening. There was heaviness in the feet, also feeling of numbness, dryness in throat, sleepy feeling. I opened my eyes maybe after 15 minutes, but that feeling of sleepiness continued for another 10-12 minutes. Only after that I came to normal sleep. How do you feel now? Get relaxed. Now in your case, I know Manutosh, and the fact that he was able to do this much of meditation itself is a big achievement for him. He is an intellectual, you know, and all these IIM fellows, he is an IIM chap, they live mostly in the head. तो उनको ध्यान कराना बड़ा मुश्किल काम है. भाई इतना हो गया, प्रभु की बड़ी कृपा हो गई मेरे पे और उनके ऊपर, ऐसा मैं मानता हूँ. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. जितने भी बुद्धिजीवी है कि अपनी बुद्धि को छोड़ना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे? प्रभु कैसे आएगा उनके पास? बताइए. वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप लेट गो करने के लिए तैयार है, तो मैं कौन होता हूँ आपको कराने वाला? हो ही नहीं सकता है. बट टुडे ही वांटेड
meditation to happen, so he gave himself some room and it happened. Now it will trigger Manutosh, it will trigger. He also has understood the orientation of meditation. So all brilliant people have this beginner's problem, and the easiest message to them is to let go your logic. ये लॉजिक ढूंढते हैं ना, अरे वाइब्रेशन ये सब क्या चक्कर क्या है. So they want to do mind management and I am telling them do God management. थोड़ा फर्क तो है, turbulence तो आता है, but one day or the other one replaces an old shoe with a new one, and that is what we have done today. Good. आप बताएं. मेरा तो मुझे तो ऐसा कई बार तो नहीं करनी, मेडिटेशन करती हूँ मैं, मुझे ऐसा लगा कि ब्लॉकेज आपका जो है ये विल है, विल में ही ब्लॉक हो रहा है, तो थोड़ा आपको लेट गो करना पड़ेगा, मन से रिलैक्स करिए. उसी टाइम चेतना में जाके आप बोलिए कि मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊं, और उसको उस शक्ति को नीचे जाते हुए महसूस करिए. थोड़ा ये जो नेक के पोर्शन से नीचे जब उतार लोगी ना रिलैक्स रिलैक्स बोल के, या किसी भी मनोवैज्ञानिक तरीके से आपने ही आपका डॉक्टर बन के इसे थोड़ा नीचे उतार लोगी ना, तो फिर वो जो क्रिया है बहुत बढ़िया होने लगेगी और उसका फैलाव भी विस्तारित हो जाएगा और आपको आनंद और दुगना हो जाएगा. मतलब पहले मैं करती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. यहाँ मुंबई के जब से मैं वर्किंग वूमन बन गई हूँ, हाँ, तो थोड़ा वो सब घर का और वो करते करते मेरा मेडिटेशन भी ऐसा रेगुलर नहीं हो पाता. सही बात. पहले बिल्कुल रिलैक्स रहती थी और कई मगर अभी आप मेडिटेशन से कई बीमारियां भी मेरी ठीक हो चुकी हैं. अभी आप ऐसा करिए ना, इफ यू गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और आपको मालूम है कि आधे घंटे का सफर है, तो कार में तो आप जाती ही हैं, तो आँख बंद कर लीजिए बस, तो दिन में भी हो जाएगा. जी पहले तो दिमाग में ये बैठा था कि सुबह उठ के ही करना है. हाँ, नहीं वो तो बात निकाल दी ना हमने. ये आपका तो क्या है, इधर से उधर जाना ही पड़ता है, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. और बेस्ट इज क्रू के लेके जाती है तो उठा ही देंगे, अगर समझ लग भी गई जाए मैडम आ गया करके, तो उठ जाना उस टाइम में, क्या वो सक्षमता आ जाएगी आपके. सो आई एम वेरी हैप्पी वी हैव एंडेड अ डे. I'll complete or the other. Have I not asked anybody? किसी का छूट गया? हाँ, आपका नहीं पूछा. नहीं पूछा थोड़ा. मुझे ये इसलिए जाना है क्योंकि अब तक मैं मेडिटेशन कभी भी करती थी नहीं, तो जैसे मैं बैठी ना आँख बंद किया तो गोल्डन येलो कलर बस थ्रू आउट, ये मैं कितना टाइम बैठी मुझे मालूम नहीं, लेकिन थ्रू आउट ये गोल्डन कलर था ही रहा. और एक भी विचार आते नहीं थे, तो मैं कॉन्शियस में क्यों विचार नहीं आते हैं, वो उसका विचार तो वापिस उसको मैं देखने जाती थी तो भी नहीं विचार आते, तो एकदम एकदम रिलैक्स और कुछ टेंशन नहीं, कुछ कोई भी विचार नहीं आते थे, एकदम रिलैक्स. लेकिन ये टिंगलिंग इफेक्ट, ये पूरा पैर से लेके हाथ तक. बेसिकली क्या हुआ आपके साथ कि यू स्टेबलाइज इन वन कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड विद योर. तो आपका क्या हुआ कि ध्यान इसी येलो पे स्टेबलाइज हो गया, तो उसके फीचर्स आपके अंदर है, उसकी पॉसिबिलिटीज है, उस कलर के साथ आपका संपर्क है, जुपिटर है, गुरु है, येलो इज जुपिटर, तो उससे कुछ कनेक्शन बनता है. अच्छी बात है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वालों के साथ ये होता है. आपका ये जो भी विषय में आपकी उन्नति होगी, एक इसमें आप रस ले रही है इसलिए येलो में स्टेबलाइज हुई, और वो हाथ पे जो हैवी होता है वो तो निकल जाएगा. आधा 15-20 मिनट थोड़ा बिस्कुट खा लो आप तुरंत. अच्छा, ध्यान करने के बाद हर एक इंसान को तुरंत कुछ मीठा खा लेना चाहिए या पी लेना चाहिए. क्यों? जो भी एनर्जी आप ली है ना, व्हाई डोंट यू गिव द बिस्किट्स, पास द माउथ, खाने दो. I don't know. जो भी ऊर्जा आपने ली है ना, वो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए एक मीडियम चाहिए. जो शक्कर है वो कार्बोहाइड्रेट्स है. कार्बोहाइड्रेट्स कैन एब्जॉर्ब एनर्जी. तो अगर आप कोई मीठा तुरंत खा लोगे तो ये एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, शरीर के अंदर रहेगी. तो आप इस ऊर्जा को एक मीडियम प्रदान करो. अभी मंदिर में जब जाते हो, भोग चढ़ता है प्रभु के सामने, हमेशा आपने देखा होगा शक्कर या गुड़ के पदार्थ का ही भोग चढ़ता है या कोई मीठा पदार्थ ही चढ़ता है. वो इसलिए कि प्रभु की ऊर्जा उसमें स्थापित होके प्रसाद के रूप में जब आप उसका सेवन करते हैं तो प्रभु की ऊर्जा आपके अंदर जाती है. ये सब अपने पूर्वज लोग बड़े बुद्धिशाली थे, उन्होंने हर तरीके का प्रबंध किया था. ये प्रभु का डोमिनोज पिज्जा पार्सल है, समझे ना आप. क्या होता है, बीवी जाती है मंदिर में, हस्बैंड बोलता है मुझे विश्वास नहीं है, उसका दिल तड़पते रहता है कि कब मेरा मिस्टर आएगा.
तो उस जमाने के लोग बड़े बुद्धिमान थे, प्रसाद लेके जाएगा तो खाएगा, लेकिन उसको मीठा बहुत पसंद है, तो उसको खिला दिया। आस्ते आस्ते एक स्टेज ऐसा आया कि ये मंदिरों में ही जाके बैठने लगा और ये चिल्लाने लगी, तुमको कोई धंधा नहीं है क्या, हमेशा जाके मंदिर में बैठे रहते हो। तो ऐसा भी परिणाम हो जाता है कभी कभी है। तो प्रभु के जो उनकी जो बातें हैं वो निराली है, वही जाने। तो ये मीठा खाना जरूरी है। और बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें इस किताब में अंकित होने की वजह से मुझे कोई बात का दुख नहीं है कि कुछ छूट गया। आप इस किताब को जरूर पढ़िए। पढ़ने के बाद जो भी ध्यान का प्यासा है उसको इस किताब के बारे में बताइए। इन दिस बुक यू हैव गॉट एन ईमेल एड्रेस, वो उसमें भी आप लिख सकते हैं। और मेरा एक वेबसाइट है, मैंने जो बताया www.cosmicmeditation.com. Then my mobile number is also written in this. So if you need any help, you can always call me. शिरडी बाबा के फोटो के साथ यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी है। ओके, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल इफ देयर इज एनीथिंग टू डू विद ध्यान। बताइए सर, अगर कोई विजुअलाइज नहीं होता है तो विजुअल्स देता है, वो इनिशियल स्टेज में देता है। उसके बाद प्रभु के साथ जो हमारा संपर्क होता है वो फ्यूल होता है। He gives you a fuel. जब आप तैयार हो जाते हो, समझो कोई अच्छा काम करने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ गई, तो फिर सिर्फ खाली आपको पेट्रोल देना है, आपका फिर काम चलता रहेगा। तो उस टाइम विजुअल देने की जरूरत नहीं, आप उस काबिल बन गए हो, बस यही मतलब होता है। बताइए और कुछ सवाल? हाँ बोलिए। My experience, हाँ प्लीज टेल मी। सॉरी। Initially I felt some pain in the head, very little. Then when actually I might have entered in the dhyan, my eyes were getting stretched and I think I had also some tears. Yes, I saw that. And then it started with some shapes of violet colors. And one shape I could identify was lotus. Was clearly identified. Then it turned into a big firing ball like sun of violet color, and then that zooming effect was continuous. So then at the end it started becoming little lighter, some black color mix, not actual black, but that shine was reducing. And then only once, just before I came out, there was small yellow patch. So were you thinking during the legs are work still numb. heavy? During the workshop, were you very much interested in knowing anything about the soul? आत्मा, इसके बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, were you getting more and more engrossed in that topic? I wanted to get connected. Okay. ये जो आपने कमल देखा ना, ये सिंबॉलिकली आत्मा है आपके लिए। कमल जो है, ये पुष्प जो है, ये आत्मिक रूप से दिखाया गया आपको। तो आपने जो कमल देखा वो आपकी आत्मा ही है, इसका यही मतलब होता है। तो आपकी आत्मा जो है प्रसन्न है कि आप सुधर गए हैं। यही मतलब होता है। बहुत अच्छा, आत्मा का साक्षात्कार। हाँ, वही आत्म साक्षात्कार ही है एक किस्म का, कि आपके अंदर इतना 360 डिग्री परिवर्तन आया है कि आप इतने ऊंचे एक्टिविटी में इतना डीप रस लेने लगे। ये बात होगी। अच्छा, अभी आप ऐसा करें कि इनको आंख में आंसू आए, ये अश्रुपात होना भी साइकिक टेंशन निकाल देने वाली बात है। और आंख न खुलना मतलब क्या, अभी भी ध्यान आपका 30 मिनट से ज्यादा चलने वाला था। ये टाइम फ्रेम में हम लोग ने तोड़ दिया ना, आपका ध्यान तो कम से कम। And lot of take home value from this program, and I'm sure you will carry this message to your other colleagues and other friends, and this thing. But I think I'm really happy that Kumar, we got people who are really interested in the whole thing. Yes, I agree with you. And each one of them has been benefited. I think more and more programs like this. Yes. And sure, because we also convinced that this kind of personality development, or where the person as an individual gets benefited. I think we should organize such programs. Ma'am, I never asked you your name. So on behalf of all of you in Chamber, because let me tell you, this he is doing as a hobby. I mean, apart from his corporate life, he is doing this. Each person should have some hobby in life, and this is the hobby that he has developed, and he has made it into a sort of science, and which he is trying to give benefits to the others. Thank you very much, Kumar. I think on behalf of Chamber and all of you. I think we should give him a standing ovation. Yes.
I want you to write on a piece of paper. अरुण सबका email और email ID हो, जिनके पास email नहीं हो टेलीफोन नंबर लिख My दे. request is also give us the feedback form which you have given. हाँ फॉर्म भी दे दीजिए Please उनको. give it to my colleague Rashmi. रश्मि को दे दीजिए जो भी फॉर्म है. Because, please fill up. It will take not more than 5 minutes for you to fill up the form and feedback form and give it. Next time, Rashmi, next time program repeat कर. After coming here, just let me think for a order. Yeah. किधर देख रहे हैं? रश्मि आपने ये जो वर्कशॉप अटेंड किया तो कुमार जी के साथ आपको क्या अनुभव आया मेडिटेशन के बारे में? मैंने तो मेडिटेशन की शुरुआत थोड़ी सी करने की थी पर मैं पूरी तरह से उसमें अंदर नहीं जा पाई. तो इसके लिए मैंने ये वर्कशॉप दूसरे पार्ट में सोचा कि इससे थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होता है तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए. ये उद्देश्य से मैंने ये वर्कशॉप और मैं जब ध्यान में गई जैसे उन्होंने बताया इस तरीके से जाने के बाद मुझे जो अनुभूति वो बहुत ही विचित्र प्रकार की अनुभूति हुई. मतलब मैं पूरी तरह ध्यान में जा पाई अंदर से जब डीप जो कहते हैं उसमें जा पाई मैं और मुझे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था. मुझे बहुत एनर्जी फ्लो कहते मुझे बहुत फील हो रही थी और मेरे हाथ पैर के स्नायु एकदम तंग हो जाते हैं स्ट्रेट हो जाते हैं और मुझे लग रहा था कि कैसे मैं बहुत एक्सट्रीम एनर्जी को फील कर रही हूँ और मुझे बेयर नहीं कर रहा हूँ सहन नहीं कर रहा हूँ और मैं उससे डेलिबरेटली मैं उसके अंदर से निकलना चाहती हूँ. मुझे आँख खोलना भी मुश्किल है और निकलने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर में थोड़े से हेवीनेस लगी और अच्छा लग रहा है और मैं इसे ज़रूर ध्यान को ज़रूर करना चाहूँगी ताकि मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड को और डेवलप कर सकूँ. इसको मैं अच्छी तरह से इसका काफ़ी बेहतरीन ये अनुभव काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत रहा. जैसे तो पहले मिस्टर कृष्णमूर्ति साहब ने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया कि ध्यान को किस तरह से देखना या सोचना चाहिए और उस तरह से समझाने की वजह से जब हमने आखिर में प्रोग्राम के एंड में या फिर लोगों को ध्यान में बैठाने की कोशिश की तो मैंने इतना खूबसूरत अनुभव पाया कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है. लेकिन अब मैं इसे बोल सकता हूँ इस वक्त में जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ कि मैं 5 साल या 10 साल कम उम्र का हो गया काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ. तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और आगे चल के इसका अगर मैं प्रयोग करूँगा तो मुझे पक्का भरोसा है कि इससे काफ़ी I conduct only on this topic. I don't know other topic. Stress management. I do mind balance, time management, leadership skills. Like Go into my website. I say life is share of success.
ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, Yeah, I'm going through something, somebody is calling me to एक जगह पे and ये स्ट्रेस बढ़ने ही है, ये स्ट्रेस कैसे People have approached me. this kind of They are stress going to organize. Anybody can organize. They can call me. I to meditation. come to Rotary Club. इसके सीखने के बाद Wherever they call me, I go. बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अरे मिस्टर के कुमार ने जो किया Yeah, I will inform people who are interested in meditation in store. एक अच्छा हो जाता है Go into my website and there is a link. Stay in touch. हमारा ध्यान से जो के अच्छी जीवन All the best. इसलिए हमने Now I feel like I'm going to